السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ناول لورز اشاق و روایات افسانہ آس پارٹ 4 از قلم مونا خان۔ اس سے اگلے دن جیا کالج نہیں گئی تھی، نہ مجھے ہوٹل میں ملی تھی۔ اتنے دنوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کہیں نہیں تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے موبائل کا نمبر بھی وہ 50 بار ملا چکا تھا، مگر کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ایسا اگلے 3 دن چلتا رہا۔ وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ ہر وہ جگہ جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا میں وہاں گیا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تھک ہار کر میں اس کے گھر چلا آیا تھا۔ یہ پتہ بھی اس کے کالج سے ملا تھا۔ اس کے گھر جا کر چوکیدار سے معلوم پڑا تھا کہ وہ مجھ سے باہر گئی ہے۔ چوکیدار نے مجھے ایک چھوٹی سی پرچی تھما کر چلتا کیا تھا جو جیا نے ہی میرے لیے دی تھی۔ میں نے اس پرچی کو کل متاع کی طرح سینے سے لگا کر چوم کے کھولا تو اس میں بس ایک ہی عبارت لکھی تھی: مجھے پتہ ہے تم یہاں ضرور آؤ گے، گھبراؤ نہیں، میں جلد واپس آؤں گی۔ جلدی میں نکلنا پڑ رہا ہے، مگر میرے پیچھے تم مقابلے سے غافل نہیں ہوگے۔ اگر تم ہارے تو ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھے؟ ساتھ ایک تنبیہ والا چہرہ بنا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار جی بھر کے ہنسا تھا۔ سڑک پر یوں ہنسنے والا پہلا نارمل انسان شاید میں ہی تھا۔ لوگ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ سچ میں پاگل تھی۔ اتنے دنوں کی پریشانی اب ختم ہو چکی تھی۔ میں نے مقابلے پر دھیان دینا شروع کیا تھا۔ مقابلے کے 3 حصے تھے: کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور پھر فائنل۔ پہلے 2 مقابلے پاکستان میں ہونے تھے اور آخری مقابلہ ترکی کے شہر استنبول میں ہونا تھا۔ میں نے پوری محنت اور لگن سے مقابلہ کیا تھا۔ ایک کے بعد ایک میں ہر مقابلہ جیتتا گیا، مگر ہر جیت میں جیا کی کمی مجھے لازمی محسوس ہوتی تھی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، اس کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اس کا نمبر ہنوز بند تھا۔ دن میں کئی بار میں وہ نمبر یوں ہی ملا لیتا تھا۔ میں جانتا تھا اس کا پاکستانی نمبر وہاں نہیں چلے گا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور انسان ایسے بہت سارے کام بھی کرتا تھا جن کو عام انسان بے وقوفی کہتے تھے۔ میں بھی بے وقوف تھا، محبت کا بنا بے وقوف۔ محبت انسان کو ہمیشہ سے بے وقوف ہی بناتی آئی ہے۔ خواب گلستان کے دکھا تپتے صحرا میں لا پٹکتی تھی۔ میں بھی اپنا ایک روشن مستقبل اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مگر میری جیا کہاں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، خود جیا بھی نہیں۔ آج ہمارے مقابلے کا آخری دن تھا اور مجھے پتا تھا آج وہ لازمی آئے گی، اس لیے میں اچھے سے تیار ہو کر آیا تھا۔ مقابلہ جیتنے کے بعد میں اسے آج اپنے دل کی بات صاف بتا کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے والا تھا۔ پاکستان ایئرپورٹ پر موجود ٹیم کے کچھ ممبرز اور میری اماں سب وہیں موجود تھے۔ مسکراہٹ میرے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد میں اسے دیکھنے والا تھا۔ میری مسکراہٹ کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ میں نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکال کر دوبارہ دیکھا۔ یہ اماں نے آج صبح ہی مجھے دیا تھا۔ یہ جیا میرے لیے چھوڑ گئی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ یہ لفافہ مقابلہ جیتنے کے بعد کھولنا تھا۔ میں اس لفافے کو کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر میں جانتا تھا یہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اسے دیکھ کر میں نے وہ واپس کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ 15 دن بعد وہ پاکستان سے لوٹی تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ خون کی الٹیاں مسلسل آ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے اسے ہسپتال ایڈمٹ کر دیا تھا۔ ہبا ہر وقت اس کے ساتھ رہی تھی، مگر اس کی بگڑتی حالت وہ نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ یہ اس دن کی بات تھی جب ارو نے خود کو تھوڑا بہتر پایا تھا۔ ہبا سے ٹی وی لگوا کر وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ ہبا کاؤچ پر بیٹھی تھی، ارو کے کہنے پر ہی LED پر لائیو کوکنگ مقابلے کو دیکھ رہی تھی۔ سب کنٹیسٹنٹ مقابلے کی جگہ پہنچ چکے تھے۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی دونوں فائنلسٹ جی جان سے اپنی ریسیپی بنانے میں جٹ گئے۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے 3 ڈشز بنانی تھی۔ ان کے ہاتھ مکانکی انداز میں چل رہے تھے۔ ارو دلچسپی سے پاکستان سے آئی لڑکی کو کوکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اب اسے دوبارہ سے متلی آنے لگی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ ہبا ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ مقابلے کا آخری حصہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ٹیسٹ اور رزلٹ آنے میں مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ارو نے اپنی سانس کو کھڑتی پائی تھی، اور پھر جب ونر اناؤنس کرنے کا مرحلہ آیا، اس نے دھندلی آنکھ سے بلال کو جیا کا دیا خط کوٹ سے نکال کر دل سے لگاتے دیکھا۔ وہ شاید اسی لمحے اسے اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ارو کی سانس اکھڑی گئی۔ پاس بیٹھی ہبا نے جب اسے دیکھا تو گھبرا کر ڈاکٹرز کو آواز دی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی اس کی روح فنا کر رہی تھی۔ سارے ڈاکٹرز فوراً آئے تھے۔ سارا عملہ سرگرم ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں بالکل مدھم ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اب اسے الیکٹرک شاک دے کر اس کی رکی سانسیں بحال کرنے میں لگے تھے۔ ہر شاک کے ساتھ باہر کھڑی ہبا کا دل کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا تھا۔ کیسی بہن تھی! اس کی اکلوتی بچی بہن بھی اسے چھوڑ کر جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخری شاک دیا گیا تھا اور اس نے آخری سانس لیتے دم توڑ دیا تھا۔ الیکٹرک مشین کی لائن سیدھی ہو گئی، ہر آواز بند ہو گئی، دنیا اندھیر ہو گئی۔ ایک اور انسان قیامت کے لیے سو گیا۔ ڈاکٹر نے نم آنکھوں سے اس کی کھلی خوبصورت آنکھیں بند کیں۔ باہر کھڑی ہبا کو آسمان خود پر گرتا محسوس ہوا۔ زندگی کی ڈور ارو کے لیے ٹوٹی تھی، مگر مردہ اس نے خود کو پایا تھا۔ جب میرا نام ونر کے طور پر اناؤنس ہوا تب مجھے لگا جیسے مجھے سب مل گیا ہو۔ ایک منٹ میں مجھے دنیا اپنے گرد گھومتی دکھائی دی۔ میری آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ انہی نم بھیگی آنکھوں سمیت میں نے اپنی ٹرافی لی تھی۔
कैश प्राइस 25 लाख था जो इसी वक्त मुझे मिला था। अम्मा बार बार आंसू पूंछती अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जब मैं इनके पास आया तो मोहब्बत से इन्होंने मेरी पेशानी चूम ली। ये मेरी जीत नहीं है अम्मा, ये जिया की जीत है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो मैं कभी यहाँ तक ना आता। मैंने ट्रॉफ़ी को देखते अपना सर फ़ख्र से बुलंद किया। दिल में जिया के ना आने की कसक भी थी, इसी से लड़ने का इरादा भी किया था। मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन वो थी ही नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ट्रॉफ़ी मेंबर्स को दी। अम्मा को आराम से बिठाकर जब वो ख़त खोल कर पढ़ना चाहा तब ही मैंने कोई आवाज़ सुनी थी, दुनिया की सबसे बुरी आवाज़। इससे बुरी खबर आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। एंकर अंग्रेज़ी में कहता जा रहा था, बहुत दुख के साथ आपको यह खबर सुनाई जा रही है कि इस सारे मुकाबले को अरेंज करने वाली और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाली हमारी प्यारी जहां आरा रोशन ने आज अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सारे हाल में अफसोस की सदाएं गूंजने लगी, मगर मैं बस एक लफ्ज़ पर अटक गया था, जहां आरा रोशन। क्या वो मेरी जिया की बात कर रहा था? मुझे कभी यकीन ना आता अगर सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर साथ दिखाई ना जा रही होती। मेरे चारों गिर्द धमाके होने लगे। एक पल में सारी ज़िंदगी कैसे तारीख होती है, ये कोई इस वक्त मुझसे पूछता। मैं जो चंद लम्हे पहले सब जीत चुका था, अब दूसरे ही लम्हे फ़कीर किया जा चुका था। अम्मा घबरा कर मुझ तक आई थीं। इन्हें टीम के किसी मेंबर ने सब बता दिया था। वो मेरी ही तरह बेयकीन थी। पुत्र, ये सब क्या कह रहे हैं, बता मुझे। वो मुझे झंझोड़ कर पूछ रही थी। मैंने सुर्ख पड़ चुकी आंखों से वहशत से सांस ली, अपना बाजू अम्मा के हाथ छुड़ाया और दीवाना वार बाहर की जानिब भागा। एंकर अस्पताल का नाम ले रहा था। कैब लेने के बाद मैं अस्पताल आया जब जिया की बॉडी क्लियरेंस करवाई जा चुकी थी। हिबा मुझे पहचानती थी, मुझे देखकर मुझ तक आई थी। तुमने आने में देर कर दी बिलाल। वो चली गई है हमेशा के लिए। हिबा की हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं भागकर स्ट्रेचर तक आया। दिल बंद हो रहा था। चेहरे पर से सफ़ेद कपड़ा उठाने से पहले मैंने दिल से दुआ की थी कि ये ख्वाब हो, मगर सामने इसका ज़िंदगी से बेजान चेहरा देखकर मैं लड़खड़ा गया। अपनी टांगों से जान निकलती महसूस की थी। इतना दर्द मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। जिया की डेड बॉडी मेरे सामने थी। मेरी जिया जिसके साथ मुझे ज़िंदगी जीनी थी, मुझे छोड़ गई थी। ये सदमा था या मेरे दिल की मौत, मुझे आज तक समझ नहीं आ सका। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। जिया को अस्पताल से घर लाया गया। सारे इंतज़ाम जिया के डॉक्टर्स ने संभाल रखे थे। मेरी अम्मी को भी कोई ले आया था। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। हर चीज़ स्लो मोशन में होती दिखाई दे रही थी। जिया से हुई पहली मुलाकात, इसका बचपना, उसकी बातें, उस रात पुल पर गुजारे उसके साथ चंद लम्हे। वो मुझे बचाने आई थी और मैं बेवकूफ़। मुझे लगा था जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर जगह थी, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, वो सिर्फ मेरे लिए आई थी। इसका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो जानबूझकर मुझसे टकराई थी। मुझे अब सब समझ आ रहा था। उफ़, काश मैं समझ जाता, काश। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसकी लाश मेरे सामने थी, मगर मैं कैसे यकीन करता कि ज़िंदगी से भरपूर लड़की मर गई। कैसे? ज़िंदगी कभी कभी इतनी बड़ी कुर्बानी मांगती है कि आपका दिल खून के आंसू रोता है, मगर मुझसे तो मेरी सारी ज़िंदगी ही छीन कर मुझे ज़िंदा रहने की सज़ा सुना गई थी। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा था, बहुत से जनाजे देखे थे, मगर जब इस वक्त जिया का जनाजा उठाया गया तब मुझे एहसास हुआ कि कोई बोझ इंसान कंधों पर नहीं, रूह पर उठाता है। मेरी रूह तो पहले से ही इसके साथ लिपटी जा रही थी। मैं चुपचाप इसके जनाजे को कंधे पर उठाए आगे बढ़ता रहा। कब्र में भी खुद उतरा। इसमें लेट कर देखा। मिट्टी वाली जगह सख्त थी। क्या इंसान सारी ज़िंदगी बस इसी जगह के लिए मेहनत करता है? मेरा दिल किया इसकी जगह कब्र में खुद दफन हो जाऊं, मगर आज इस जगह मेरी जिया को दफन होना था। कब्र पर पर्दा किया गया। मैंने खुद इसे कब्र में उतारा। एक आखिरी बार इसका लम्स महसूस किया। इसकी खुशबू एक आखिरी बार अपनी सांसों में उतरती महसूस की और फिर कब्र से निकल आया। कब्र पर मिट्टी डाली गई, मगर वह मिट्टी मेरे दिल पर पड़ती रही। मेरा दिल दफन होता रहा। बिलाहिर कब्र मुकम्मल हो गई। क़यामत तक वहाँ सो गई। सब चले गए, मैं अकेला रह गया और मैं पूरी शिद्दत से रो दिया। मेरी आवाज़ सारे सुनसान कब्रिस्तान में गूंजती रही। क्यों जिया, क्यों चली गई तुम? मुझे ज़िंदा छोड़कर खुद मर गई। क्यों किया तुमने ऐसा जिया, क्यों? मैं धाड़े मारकर रो रहा था। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। देखने वालों का दिल होल रहा था। आज मुझे रोना था, ये दर्द किसी तरह कम करना था, मगर ये ऐसा दर्द था जो कभी कम नहीं होना था। बहुत बुरी हो तुम जिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। रोते हुए मैंने एक हिचकी ली थी। वो सच में बुरी है, मैं भी इसे माफ़ नहीं करूँगी। निस्वानी आवाज़ बिल्कुल मेरे करीब से सुनाई दी थी। मैं नहीं पलटा था, जानता था इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है। हिबा कदम कदम चलती मुझ तक आई थी। कितनी बुरी है ना वो, कभी भी किसी को पूरी तरह मैसर नहीं आ सकी। इसके पैदा होने के बाद हमारी अम्मी की डेथ हो गई थी। जब ये 12 साल की हुई तो अब्बू गुजर गए, और जब 18 साल की हुई तो खुद को मर्ज़े मौत लगा बैठी। मैं बच्चों की तरह सिसकियों समेत रोता रहा और वो बोलती रही। तुम्हारे बारे में इसने तब जाना था जब अब्बू की वसीयत पड़ी थी। एक वीडियो हमें इनकी तिजोरी से मिली थी। इसमें तुम्हारे और इनके बारे में सब था। तुम हमारे चचा के बेटे हो जिनका सारा कारोबार अब्बू ने हथिया लिया था।
हिब्बा ने आंखें मींच कर इस कड़वे सच को बयान किया था, मगर वो वैसे ही बैठा रहा था। मुझे अब मज़ीद कोई चीज़ अफसरदा नहीं कर सकती थी। तुम्हारे और चच्ची के बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला तुम लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तभी इसने फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान जाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। वो अपनी ज़िंदगी तुम्हें देना चाहती थी। वो बस तुम्हारी मदद करने गई थी बिलाल। इसे पता था इसके पास वक्त नहीं है। वो चाहती तो अपनी सारी दौलत यहाँ से ही तुम्हारे नाम कर जाती, मगर वो चाहती थी कि तुम कुछ बन जाओ, तुम्हारा डर ख़त्म हो जाए। और देखो इसने जो कहा कर दिखाया। आज सारा पाकिस्तान तुम्हें जानता है। वो इसकी कब्र की गीली मिट्टी पर हाथ फेर रही थी। जब इसने तुम्हें पहली बार बस में देखा था तो मुझे कॉल करके कहती है, हिब्बा इस बेवकूफ़ का टोटल रेनोवेशन करना पड़ेगा। इंतहाई बेवकूफ़ वाक़या हुआ है। वो धीरे से मुस्कुराई। मैंने पहली बार मुड़कर इसे देखा। इसकी शक्ल जिया से काफ़ी हद तक मिलती थी। इस रात जब इसने तुम्हें खुदकुशी करने से रोका था तब भी मुझे कॉल की थी। मेरे कॉल उठाते ही कहने लगी, एक नंबर का गधा है, लगता ही नहीं कि मेरा कज़न है। मरने जा रहा था बेवकूफ़, इतनी मुश्किल से इसे रोका है, मत पूछो। इस बार मैं भी मुस्कुराया। मैं कैसे और किस तरह इसका शुक्रिया अदा करता। वो मसीहा की तरह मेरी ज़िंदगी में आई और शुक्रिया का मौका दिए बगैर ही चली गई। जिस रात तुमने इसे कहा था कि हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, इस रात इसने वीडियो कॉल पर मुझसे बात की थी। क्या कहा था इसने? मैंने बेख्तियार पूछा था। ये वो बात थी जो मुझे हर हाल में सुननी थी। हिब्बा की उदास मुस्कुराहट मेरे बोलने के साथ ही ख़त्म हो गई थी। इसने कहा था कि बिलाल चाहता है मैं हमेशा के लिए इसके घर रहूं। पहली बार मुझे ज़िंदगी की ख्वाहिश पैदा हुई है। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। हिब्बा मुझे कहीं से थोड़ी ज़िंदगी ला दो, मैं चंद दिन वहाँ रह सकूँ। हिब्बा के रुखसार भीग गए, इसकी आवाज़ भरा गई। सच में इंसान इसी बारे में नाशुक्र है जो इसे मैसर है। तुम्हारे पास ज़िंदगी है, तुम्हें वो पसंद नहीं। जिनके पास नहीं होती वो अपनी सारी दौलत देकर भी चंद दिन मज़ीद इसे ख़रीदना चाहते हैं। मुझे इसी वक्त इसकी कही बात याद आई और मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में डालकर पसीज दिया। इसने अपने बारे में कहा था, मैं तब भी नहीं समझा था। इसके पास सब था बिलाल, बस थोड़ी सी ज़िंदगी नहीं थी। वो ज़िंदा रहना चाहती थी। इसे कब्र से डर लगता था, इसे अंधेरे से भी डर लगता था। वो इस अंधेरी कब्र में कैसे रहेगी बिलाल? वो सिसकियों से रोने लगी। ना ख़त्म होने वाले आंसू टप टप कब्र की गीली मिट्टी पर बरस रहे थे। मैंने मुंह पर हाथ रखते सिसकियों का गला घोंटा था। हिब्बा के सामने इस वक्त मज़ीद रोता तो इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती। मुझे सब संभालना था। जिया का गम तो सारी ज़िंदगी साथ रहना था। मैं हिब्बा को लिए वहाँ से चला आया था और कब्रिस्तान अपने मकीनों के साथ तन्हा रह गया था। इसके बाद हमारी ज़िंदगियों में सब था, मगर जिया नहीं थी। और एक इसके ना होने की वजह से शायद कुछ भी नहीं था। आज 5 साल गुजर चुके हैं इसकी मौत को और वो आज भी पहले दिन की तरह मुझे याद आती है। ऐसा नहीं है मैं इससे नहीं मिलता। वो हर रात मेरे ख्वाब में आती है। मैं हर सुबह इसकी कब्र पर। आज भी जब मैं इसकी कब्र पर आया तो वो भी आ गई। वो सोनिया थी, हिब्बा की नंद, जिसे हिब्बा ने ही मेरे पीछे लगा रखा था। तुम रोज़ यहाँ क्यों आते हो? रोज़ की तरह कब्रिस्तान ने मुझे देखकर पूछ रही थी। वो रोज़ मेरे ख्वाब में आती है, क्या मैं इसकी कब्र पर नहीं आ सकता? मैं वैसे ही सिपार सा चेहरा लिए बोल रहा था। हंसना रोना ज़िंदगी का कोई तासुर मेरे चेहरे पर नहीं हुआ करता था। वो जा चुकी है, इसे भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं जानता हूँ वो मर चुकी है, वो दोबारा कभी पलट कर नहीं आएगी, मगर मैं इसका इंतज़ार आखिरी दम तक करता रहूँगा। अगले जहाँ वो मुझे मिलेगी तो मैं इसे बताऊँगा कि मुझे इससे कितनी मोहब्बत थी, इसके बगैर कितना तड़पा हूँ मैं। दर्द ही दर्द, सिर्फ दर्द बसता था मेरे अल्फाजों में। ऐसा क्या था इसमें जो तुम यूं दीवाने हुए फिरते हो? वो झंझला गई शायद। मेरी इस जिद के आगे वो बेबस हो चुकी थी। मैंने सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा, जैसे कह रहा हूँ तुम तो जानती ही नहीं वो मेरे लिए क्या थी। फिर जब मैं बोला तो आवाज़ में नमी सी घुली थी। वो खुद मर रही थी, मगर मुझ जैसे लड़के को जीना सिखा गई। इस जैसा कोई और नहीं था। आप नहीं समझ सकती वो मेरे लिए क्या थी। बस समझ लीजिए वो मेरी रूह थी। अब मैं सांस ले रहा हूँ, जिंदा नहीं हूँ। मैंने बेबसी से गर्दन झुका ली, जैसे कहने को कुछ बचा ही नहीं। सवाल करने वाली लड़की वापस पलट गई। इसके पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगले दिन इस्तांबुल में बर्फ़ के सफ़ेद ओले आसमान से ज़मीन पर बरस रहे थे। ठंड शदीद थी और इसी ठंड में मैं स्याह कोट पहने इसी कब्रिस्तान में आ रुका था। इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था कि मैं इसकी कब्र पर ना आया हूँ। आज भी इसकी याद मुझे यहीं इसके पास खींच लाई थी। अम्मा के साथ मैं यहीं तुर्की शिफ्ट हो गया था। हिब्बा की शादी भी मैंने करवाई थी, मगर अपनी ये शादी नामुमकिन था। इसके चलते हिब्बा ने अपनी नंद मेरे पीछे लगा रखी थी, जिससे मैं ऐसे ही भागता था जैसे चूहा बिल्ली से। अजीब बला लड़की थी, पीछे ही पड़ गई थी। सर झटक कर मैंने गहरी सांस ली और जिया की कब्र के पास आ रुका। कब्र के कुत्ते पर जहाँ आरा नहीं जिया लिखा था, ये मैंने लिखवाया था। इसे ये नाम नहीं पसंद था तो मुझे कैसे हो सकता था। पंजों के पल में इसके सरहाने वाली तरफ बैठा। हर रोज़ ख्वाब में आकर तो बहुत बातें करती हो, मगर जब मैं आता हूँ तो कुछ नहीं बोलती। उदासी से मुस्कुराते मैंने कब्र की मिट्टी मुट्ठी में दबाई, जैसे जिया का लम्स महसूस करना चाहता था। तुम बहुत बुरी हो जिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हर बार की दोहराई बात आज भी दोहरा रहा था। जीन्स की जेब में रखा फ़ोन थरथराया तो मैंने निकाल के सामने किया। हिब्बा की कॉल आ रही थी। लो तुम्हारी बहन की कॉल आ गई है। थोड़ी पागल है, मगर तुम जितनी नहीं। मैंने कॉल काट कर मैसेज कर दिया कि मैं जल्दी आ जाऊँगा।
मोबाइल वापस जीन्स की जेब में रखा, जिया की जानिब मतवज्जा हुआ। तुम्हारी भांजी 1 साल की हो गई है आज, इसकी बर्थडे पार्टी है इसीलिए मुझे बुला रही है। जाना पड़ेगा वरना वो दोनों मेरी जान निकाल लेंगी। वैसे तुम्हें बताया है ना कि इसका नाम भी जिया है, वो तुम्हारी तरह है। मैंने मुस्कुराकर शरारत से कहा तो ऐसा लगा कि जैसे जिया मुस्कुराई थी। इसे अलविदा कहते मैं कब्रिस्तान से निकल आया था। अगले आधे घंटे में हिबा के ससुराल में था। वहाँ बर्थडे बड़ी सादगी से मनाई जा रही थी। हिबा खुश रहने लगी थी, इसका ससुराल बहुत अच्छा था। मैं बस थोड़ी ही देर वहाँ रुका था क्योंकि वो लड़की सोनिया भी वहाँ मौजूद थी। इससे पहले वो आज फिर मुझ तक आती, मैं वहाँ से निकल आया। वहाँ से सीधा मैं अपने होटल आया था। ये होटल और इस जैसे कई होटल्स में खुद चलाता था। सारा दिन वहाँ गुजारने के बाद जब मैं घर आया तो हिब्बा अपनी बेटी के साथ वहीं आई थी। छोटी जिया को देखकर ही मेरी सारी थकन उतर गई थी। अरे माशाल्लाह मेरी गुड़िया आई है। हिब्बा से सलाम करके मैंने जिया को उठा लिया था। जिया भी मुझे बहुत पसंद करती थी। मेरे पास आते ही वो खिलखिला के हंसा करती थी। बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, तुम्हें शादी क्यों नहीं करते? अम्मा आप इसकी ज़बरदस्ती शादी करवाएं। हिब्बा ने एक बार फिर मेरी शादी का मौजू छेड़ दिया था। इसकी ज़िंदगी का वाहिद मसला अब मेरी शादी था जो हल होने से रहा था। मैंने आंखें खौफ से घुमाते जिया को देखा। वो अपने छोटे हाथों से मेरा चश्मा उतारने की कोशिश कर रही थी। मैं तो कह कह कर थक गई मगर ये मानता नहीं। तुम ही कुछ करो, मेरे बस की नहीं इस लड़के से बहस करना। अम्मा ने हार मानते पल्लू झाड़ लिया। हिब्बा सर पीट कर रह गई। पहले जिया और अब मैं। कोई इसकी बात सुनता ही कब था। आप देख लेना अम्मा, इसकी शादी मैं करवा कर ही दम लूंगी। वो मेरी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देखकर मजीद तप गई थी। दम से याद आया, अब आई हैं तो दम वाली बिरयानी बना दे, बहुत भूख लगी है मुझे और जिया को। मैंने ढीठ पने से कहते शरारत से जिया को देखा तो वो भी खिलखिला के हंसी, जैसे इसे मेरी बात पसंद आई थी। हिब्बा मुझे घूरती किचन में चली आई। मुझसे मजीद बहस करके वो अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकती थी। डिनर पुरसुकून माहौल में किया गया था। जिया बमा वक्त मेरे साथ रही थी। अम्मा के कहने पर वो दोनों आज यहीं रुक गई थी। जिया को सुलाकर मैं हिब्बा को देकर अपने कमरे में आया तो हमेशा की तरह एक उदासी ने अपनी लपेट में ले लिया। जिया के बगैर हर चीज़ अधूरी थी, ये कमरा भी। मैंने गहरी सांस ली, स्टडी मेज़ तक आया, चश्मा उतार के मेज़ पर रखा, कुर्सी खींच कर बैठा और नीचे का दरवाज़ा खोलकर जिया का दिया खत मामूल की तरह निकाल कर पढ़ने लगा। मैं इसका खत रोज़ रात को सोने से पहले लाजमी पढ़ता था। ये आखिरी चीज़ थी जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता था। मैंने ख़त खोल के मेज़ पर रखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे जिया अब भी वहीं थी। इससे पहले मैं वो पढ़ता, मुझे याद आया कि अम्मा को दवा भी देनी है। ख़त को यूं ही खुला छोड़कर मैं कमरे से बाहर निकल आया। ख़त अपने खूबसूरत पैगाम के साथ खुला रह गया। क्या आप जानना चाहते हैं इस ख़त में क्या लिखा है? चलें जिया की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे बेवकूफ़ बिलाल जी, इसने ख़त की शुरुआत में यही लिखा था। वो जिया थी, वो इसे वैसे ही पुकार सकती थी। मैं जब चली जाऊँगी तब तुम्हें यह ख़त मिलेगा। मेरी सादगी तो देखो, आईफोन के दौर में ख़त लिख रही हूँ। साथ एक मासूम सा चेहरा बना था। खैर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद ज़्यादा मत रोना वरना ख्वाब में नहीं आऊँगी। जिया और धमकी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता था? मैं जहाँ आरा रोशन, जिसने जो चाहा वो मिल गया सिवाय अच्छे नाम के, साथ एक रोने वाला चेहरा। खैर इसके बाद ज़िंदगी भी कम मिली, मगर मैं खुश हूँ कि मुझे ज़िंदगी मिली तो है। मैंने दुनिया देखी तो है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। मैंने इसका खैर रंग देखा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं मरने से पहले तुमसे मिल सकी। तुम अपनी तरह के वाहिद आदमी हो बिलाल, जिससे मुझे इरिटेशन भी थी और प्यार भी था। आंखें फाड़ के मत देखो, सच कहा मैंने। प्यार तो मुझे भी हो गया तुमसे, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हर मुसीबत से लड़ने वाली जिया मौत से हार चुकी है और मैं तुम्हें बताऊँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार मौत ही है। हो सके तो मुझे याद रखना। फ़कत तुम्हारी जिया। पहली बार इसका ख़त पढ़कर वो बहुत रोया था और आज वो हंसा भी करता था और फिर रोता भी था। वो चली गई थी मगर इसकी आस आज भी इसके दिल में ज़िंदा थी। बस इसी आस के सहारे वो ज़िंदा था, सिर्फ इसका बनकर रहने के लिए। एक बेवकूफ़ सा लड़का बिलाल। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं दोबारा बहुत सी अच्छी कहानियों के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।